Hello everyone, welcome to our channel The Commerce Catalyst. Today we are going to continue the bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. I am sharing a question. On comparing the cash book of Gurman with the bank passbook for the year ended 31st March 2024, following discrepancies were noticed. Out of 35,000 paid in by check into the bank on 25th March, check amounting to 15,000 were collected on 5th April. So first of all, make the format. This is the format of bank reconciliation statement. Date, particulars, particulars, amount, rupees, amount, rupees. This is the format of bank reconciliation statement. In this questions also given the balance as per cash book. Balance as per cash book. This question balance given as per cash book 79,140. 79,140. Balance as per cash book. Cash book means balance, it means debit. This is also called the favorable balance. So what is the favorable balance? The cash book favorable balance is the debit balance. So debit balance is the given the 79,140. Now right here is add and less. So which amount is add and which amount is less for reconciliation? Because the question, out of 35,000 paid in by check into the bank on 25th March, check amounting rupees 15,000 were collected on 5th April. It means the questions 35,000 जो है वो 35,000 का एक चेक जो है वो बैंक में 25th मार्च को देता है, लेकिन उसमें से कलेक्ट जो है 15,000 जो है वो 5th अप्रैल को होता है. तो आई ऑलरेडी discuss about the date is a very important factor in these two chapters, one of the bank reconciliation statement and another in the depreciation. So in this the bank reconciliation statement as on 31st March 2024. But in question is given the 35,000 paid by check into the bank, but 15,000 were collected on 5th April. So the our deadline date on 31st March 2024. But 15,000 transaction when will we collect? 5th April. So I already discussed about the
कि what is the funda of this chapter. In this questions given balance as per cash book. So where if given the cash book, it means you think the cash book to passbook. So what happened in the passbook? So what happened in the passbook in this question? 35,000 check. It means 15,000 collect 5th April. So we consider only 20,000 is adjusted. So it means the balance as per cash book. So cash book to passbook. So in passbook, the 5,000 is what happened in this transaction. In this transaction, 35,000 पेड इन बाई चेक, चेक के द्वारा दिया गया 25 मार्च को, लेकिन उसमें से 15,000 रुपया कलेक्ट कब हुआ है? 5 अप्रैल को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं रिकनसाइल? 31 मार्च को कर रहे हैं। तो 31 मार्च को 15,000 रुपया जो है हम कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं, तो वो 15,000 जो है पासबुक में क्या होगा? लेस दिखाई देगा। क्यों लेस दिखाई देगा? बिकॉज हम 15,000 रुपया जो है वो कलेक्ट नहीं किए हैं। कब तक? 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यही लिखेंगे कि चेक डिपॉजिट किए बट नॉट कलेक्टेड इन द बैंक ऑन 31 मार्च। हाउ मच अमाउंट? 15,000। तो यहाँ पे 15,000 कहाँ पे आएगा? लेस में आएगा। is the 15,000. Hope you understood. 35,000 का चेक यहाँ पे क्या हुआ? डिपॉजिट हुआ, जिसमें से 15,000 जो है वो 5 अप्रैल को जाकर के बैंक में आया। तो इसका मतलब 31 मार्च को ये नहीं आया। और हमने क्या बोले हैं क्वेश्चन में कि जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हम कहाँ जाना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लासेस में कि हम ये देखेंगे कि अगर हम मैरिज पार्टी में जाते हैं तो हमें कैसा ड्रेसअप होना होगा? मैरिज पार्टी के लायक बनना पड़ेगा। अगर हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जैसे ड्रेसअप करना पड़ेगा। अगर हम स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते हैं तो हमें उस तरह के ड्रेसअप करना पड़ेगा। तो इट मींस इस क्वेश्चन में ओनली वन फंडा, यही एक फंडा है कि अगर हम कैश बुक से जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? पासबुक में। तो पासबुक में क्या हो रहा है? तो पासबुक में ये हो रहा है कि बैंक में हमारा उस डेट को यानी 31 मार्च को 15,000 यानी 15,000 जो है वो कम आ रहा है। तो कम आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि चेक डिपॉजिटेड ₹35,000 on 25th March, but ₹15,000 collected on 5th April. The another question is, out of check drawn amounting 15,600 on 28th March, a check 5,000 was presented on 3rd April. The same out of check drawn amounting 15,600 28th March, a check ₹5,000 was presented on 3rd April. It means 5,000 is what happened? 5,000 added. Why added? Because कैश बुक से हम कहा जा रहे हैं? पासबुक में। मैंने बोला था कि ये फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो कैश बुक से कहा जा रहे हैं? पासबुक में जा रहे हैं। तो पासबुक में क्या हो रहा है? ये 3rd अप्रैल को जाकर के हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अभी भी ये पैसा जब डाउन हुआ है तो ये 5,000 क्या है? 15,500 600 में ये बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम वही लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि आउट ऑफ चेक ड्रॉन अमाउंटिंग 15,600 on 28th March, a check for 5,000 was presented on 3rd April. So it means add 5,000. 5,000. Check issued on 28th March
check issued on 28th March and presented for payment when 20 and presented for payment. Next, a check of rupees 2000 entered in cash book but omitted to be bank account on 31st March. A check for rupees 2000 entered in cash book. इसका अर्थ है कि हमने एक चेक इंटर्ड किया, यानी क्या, तो इसका मतलब कैश बुक को हमने बढ़ा दिया, लेकिन ओमिटेड भूल गया कहाँ पे, बैंक करना। तो इसका मतलब क्या है कि पासबुक में अभी भी ये क्या है, घटा हुआ है, और कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब हम कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 2000 यहाँ पे लेस कर देंगे। क्या करेंगे, 2000 को लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे, रुपीज 2000 entered in cash book but omitted in bank account. Omitted in bank account. Next, a check 1200 deposited into bank but omitted to be recorded cash book was collected by the bank on 29th March. A check for rupees 1200 deposited into bank 1200 but क्या, बट omitted to be recorded in cash book, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, omitted कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय 29th मार्च, तो कलेक्ट किया 20। इसका मतलब है कि 1200 रुपया जो है कैश बुक से हमको पासबुक यानी बैंक में हमारा है, लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। हाउ 12,000, सिंपल सा लिखना है कि डिपॉजिटेड रुपीज, अ चेक रुपीज 1200 check rupees deposited but not entered in cash book. How much? 1,200. How much? 1,200. The next question. Next, a check for rupees 1,040 previously discounted. So discounting charge 40 with the bank has been dishonored, but advice was received on 3rd April. It means a check 1,040 का जो है वो डिजॉनर्ड हो गया, प्रीवियसली डिस्काउंटेड, और इसको जब डिस्काउंट किया था उसमें डिस्काउंटिंग चार्ज कितना था, 40। तो बैंक हैड बीन डिजॉनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड, बैंक डिजॉनर्ड हो गया लेकिन एडवाइस कब आया, 3rd अप्रैल को। इसका मतलब जब हम एक चेक को 1040 का चेक को हमने क्या किया था, इसको हमने डिपॉजिट किया था, तो जब डिपॉजिट किया था तो हमारा जो है कैश बुक को हमने बढ़ा दिया था, लेकिन पासबुक में वो एंटर नहीं हुआ था, डिजॉर्न ये हुआ था। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में 1040 क्या होगा, लेस होगा, 1040 लिख देंगे कि चेक डिजॉर्नर्ड बट एडवाइस received on 3rd April. My dear friend,
हमने क्या देखा, द कॉन्सेप्ट यही है जो हमने लास्ट में दिखाए थे, लास्ट क्वेश्चन में जो बताए थे वही कर रहा है काम यहाँ पे। लेकिन डिफरेंसेस क्या हो रहा है यहाँ पे सिर्फ डिफरेंसेस ये है कि हम क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ना होगा हमें। कि क्वेश्चन मीन्स क्या है कि मैंने बोला था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्वेश्चन मीन्स पापा एंड मम्मी, जो बोले वही करो। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको पढ़ो, समझो, और वो क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करो। जैसे a check rupees 20,000 was discounted from bank, so discounting charge being 300 but the amount of the check was debited in the bank column of the cash book। इसका मतलब ये है कि ये 300 जो है डेबिट हो गया, बैंक से डेबिटेड हो गया, लेकिन अभी इनको पता नहीं है। तो बैंक से जब डेबिटेड हो गया तो 300 क्या हो जाएगा, लेस में जाएगा। तो हम यहाँ पे 300 फिर क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक चार्ज डेबिटेड, बैंक चार्ज डेबिटेड, हाउ मच, 300। तो इसमें आपने पर्टिकुलर क्या देखा कि डेट जो है ना इस चैप्टर में वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आपको डेट को समझना होगा कि ये डेट, बिकॉज हम ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं वो 31 मार्च 24 को कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट अगर कोई चीज है तो इसका 31 मार्च को क्या इम्पैक्ट है, इस चीज को जानना, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अब जैसे है, a check rupees 5,000 wrongly credited in passbook on 29th March was reversed on 2nd April। अब रॉन्गली क्रेडिट हुआ, लेकिन 29th मार्च को रॉन्गली क्रेडिट भी हो गया, इसका मतलब हमारा पासबुक बड़ा है। तो पासबुक, और हम कैश बुक से कहाँ जा रहे हैं, पासबुक, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि इस चैप्टर में वही है कि सिर्फ यही देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम कैश बुक से कहाँ जा रहे हैं, पासबुक में। तो कैश बुक से पासबुक में जब जा रहे हैं तो पासबुक में क्या है, उस डेट को, हालांकि रिवर्स हो गया, लेकिन वो जाके कब हुआ, मार्च में नहीं हुआ, 31 मार्च में नहीं हुआ, वो अप्रैल में जाके हुआ। तो उसको मुझे नहीं देखना है कि अप्रैल में क्या हुआ, मुझे ये देखना है कि 31 मार्च को उसको क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सो दैट इज द मोर इंपोर्टेंट कि ऑन 31 मार्च को क्या इंपैक्ट डाल रहा है। तो 31 मार्च को ये इंपैक्ट डाल रहा है कि 5,000 क्रेडिटेड हो रहा है, यानी हमारा पासबुक बड़ा हुआ है 5,000। सो हम कैश बुक से कहां जा रहे हैं, पासबुक के पास जा रहे हैं। लिख देंगे यहाँ पे ₹5,000 credited into बैंक, यहाँ पे 5,000 डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 10,000 इन द अकाउंट ऑफ 31 मार्च एंड रिवर्स, अगेन सेम थिंग। क्या बोला कि बैंक गलती से 10,000 रुपया जो है वो डेबिट कर दिया, यानी 10,000 डेबिट कर दिया, इसका मतलब बैंक ने 10,000 घटा दिया, उसको सही किया, लेकिन कब जाके, 10 अप्रैल में जाके। तो हम फिर बार बार वही बोल रहे हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है, या डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे डेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रॉन्गली एक बैंक ने 10,000 डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट को, लेकिन 31 मार्च को कर दिया, बाद में जाके अप्रैल में वो सही किया। लेकिन मुझे अभी मैं ये जो रिकंसाइल कर रहा हूँ वो एज ऑन 31 मार्च 2024 को कर रहा हूँ। तो जब एज ऑन 31 मार्च 2024 को करूंगा तो उस डेट को क्या हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस डेट में क्या हो रहा है, 10,000 से बैंक मेरा लेस हो रहा है। तो इसका मतलब 10,000 से बैंक हमारा लेस हो रहा है, तो हम कैश बुक से कहा जा रहे हैं, पासबुक के पास जा रहे हैं। तो हम 10,000 से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, लेस कर देंगे। तो इसको हम 10,000 से क्या करें, लेस कर दिए। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है सिंपल सा कि a check 400 drawn on the saving account has been shown drawn on current account in cash book। बोला इसको क्या क्या है, करंट अकाउंट कैश बुक में। तो इसका मतलब चेक जो है वो ड्रॉन हुआ है सेविंग अकाउंट में, बट रॉन्गली क्या हो गया, रिकॉर्डेड हो गया इन कैश बुक में। इसका मतलब ये बढ़ा हुआ है, कैश बुक से पासबुक में जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 400 डाल देंगे। अब सेम थिंग, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लिए। अब ऐड जब करेंगे, ये क्या है 5,000,
ये है 6,200, ये हो गया 10,000, यानी हो गया 10,000, 11,200, 11,600, ये 11,600 यहाँ हो गया ऐड में। अब इसको अगर करते हैं तो ये हो गया 10, 15 टू 17, 10, 27, 27, 28, 28,340, ये आ गया 28,340। तो इसका मतलब माइनस ज़्यादा आ गया, तो अब यह 28,340 और माइनस 11,600, अगर इसको हम लेस करते हैं तो ये हो गया 0, और हो गया 4, ये हो गया ऐसे, ये हो गया 3, मतलब ये हो गया 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 7, ये हो गया 7, ठीक है। अब 7 में से बन गया 6, 7 में से बन गया 6, ये हो गया 2 में से बन गया, यानी 16,740। ये 16,740 किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसे लिखेंगे 16,740। अब अगर हम इसको माइनस करते हैं 79,140 से, 79,140 और 16,740, 0, 0, यानी 62,400। ये बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा 62,400, लास्ट जो होगा 62,400 बैलेंस एज पर पासबुक। इट मीन्स ये सिंपल ये है कि हम कहाँ से जा रहे हैं, बैलेंस कैश बुक से जा रहे हैं पासबुक के पास। थैंक्स।